for the people around us and the animals around us. And hopefully this film will, to each individual, it'll do that for them. Also, I don't think, like I'll take a Tagore example. In my house, there is a frame of Rabindranath Tagore with his famous quote, where the one which says, where the mind is without fear and the head is held high. Now, he wrote that, and it's in my house, and many people have it. It's a way to sow a seed of thought in my mind every day when I see it in my living room about something. We find it exciting to work in a studio. See, a real location brings. हमने यहाँ होरुतो की बगान में शूट किया, पार्क स्ट्रीट में शूट किया, and the smells, the sounds, they bring a certain flavor to your performance, I feel. But it's another challenge to be inside a studio and imagine all those things and create the performance. So I really enjoy it as an actor. I also enjoy VFX a lot. So making the Hyena was a lot of fun, and I'd like to thank the team that has worked on it, because they really worked hard to make sure the detailing of the fur, the colors, and that's why it looks so real. So yeah. Wow, that's really nice, and the Hyena actually looked very real. So hats off to the VFX team. Riddhi ma'am, a question for you. The question is, we want to know more about Akshara. जितना बता सकते हो फिल्म की स्टोरी रिवील करे बगैर. No, so in the world of the film and Kahani mein, there is bad and there is good. There's the hero and there's the villain, and then there is Akshara, who's somewhere in the middle. She's grey to me, and she's walking that line of law and order, and the questions that a lot of us citizens will have regarding many things. She's posing those questions to him or to Aryan's character. So that's played by Paresh, and Paresh Pahuja, who plays the antagonist, he's shooting in Kolkata right now, and he will be reaching here in the next 1 hour. So I hope you guys stay around, because he's one of the best actors we have, I feel, right now, and he has done an incredible job in the film. Like he's like a sexy, cold. Everything in this film is a tribute to my love for Bengal and Victor's love. Victor, the director, is from Bengal. So Byumukesh Bakshi is one of my favorite characters. लक्कड़ बग्गा 13 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में आ रही है. सबसे पहले तो सॉरी, मेरी आवाज़ बैठी हुई है, तो आप लोग ऐसा मत सोचिए आपका स्पीकर ख़राब है, आपका टीवी ख़राब हो गया है, या फ़ोन ख़राब हो गया है, या हेडफोन ख़राब हो गया है. मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इस मूवी में एक कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन किया है, पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि बहुत जेन्युइनली अंशुमन जो है वो एनिमल्स के ऊपर मूवी बनाना चाहते थे, और उनका सोच ये था कि एनिमल्स जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने मूवी बनाने का सोचा. तो आई वाज लाइक आई वांट टू डू दिस. मेरे लिए मीडियम मैटर नहीं करता. मैं उतना ही टेलीविज़न पे काम करती हूँ, मतलब उतनी ही डिलीजेंटली टेलीविज़न पे किया, OTT पे किया और फिल्म पे कर रही हूँ, तो मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है. तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म दैट इज़ टॉकिंग अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. ह्यूमैनिटी की बात करता है, वॉइसलेस की बात, जो वॉइसलेस है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की बात करता है हाइना जो है. सो इट्स आई थिंक अ फिल्म विद अ मैसेज, और क्योंकि एक्शन है और थोड़ा बहुत कोलकाता का फ्लेवर है, तो कॉमेडी भी है, तो वो लाइट हार्टेडनेस भी है. मैम, इससे पहले आपको हम लोगों ने छोटे पर्दे में देखा, अब बड़े पर्दे में देखेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है छोटे पर्दे और बड़े पर्दे का? एक्सपीरियंस यही है कि देखिए, मीडियम अलग होता है, तो मीडियम की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, और एक इंटेलिजेंट एक्टर को अपना इंटेलिजेंस यूज़ करना चाहिए कि इस मीडियम की ये रिक्वायरमेंट है, मुझे ये देना है, इस मीडियम की ये रिक्वायरमेंट है, मुझे ये देना है, और वही मैं करती हूँ. मेरा यही पर्पस होता है कि जिस भी मीडियम में आप मुझे डालो, आई शुड ऐड वैल्यू टू वॉट यू वॉन्ट आउट ऑफ मी. तो एज एन आर्टिस्ट आपको मुझसे जो चाहिए, पेपर पे जो लिखा है, मैं उससे बढ़ के ही करने की कोशिश करती हूँ. मेरी कोशिश वही होती है. सो ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछे अलग अलग मीडियम पे काम किया है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि होपफुली लोग आगे चल के मुझ जैसे आर्टिस्ट को देख के ये नहीं बोलेंगे कि ये टीवी एक्टर थी अब फिल्म कर रही है. वो ये बोलेंगे ये हर
मीडियम में काम करती है, और ऐसा ही होना चाहिए। और मैं सब्सटैंशियल रोल करना चाहती हूँ, बड़े रोल करना चाहती हूँ, और यू नो आई वांट टू कैरी अ प्रोजेक्ट ऑन माई शोल्डर्स, एंड बिकॉज आई नो आई कैन डू इट। मैंने किया हुआ है टीवी पे, इतने साल वही किया है, तो आगे भी चल के मैं यही करना चाहती हूँ। मैं छोटे रोल नहीं करूँगी, मैं यू नो जस्ट बिकॉज मूवी है तो यू नो आगे चल के अभी आ रही है 2 मूवीज़ जिनमें मैंने कदम रखा है, वो ठीक है, वो शुरुआत की बात है, बट आगे चल के मैं नहीं करूँगी। मैम, इस मूवी का फेवरेट सीन क्या है आपका? ओह, फेवरेट सीन, आई थिंक मेरा फाइट सीक्वेंस मेरा फेवरेट है। अगली फिल्म हो सकती है, शायद अगली फिल्म, मुझे नहीं पता था। तो मैं अब सिर्फ ऐसी फिल्में करना चाहता हूँ जो जिसमें कुछ मीनिंग हो, विच इज सेइंग समथिंग, जो एक 100 साल बाद भी अगर कोई बच्चा देखे तो उसको लगे कि अरे यार 2023 में इन लोगों ने ऐसी फिल्म बनाई अबाउट। सो इसीलिए जब मैंने हम भी अकेले तुम भी अकेले की, विच इज ऑन Disney+ Hotstar, my last release, Zareen Khan and me, that's about the LGBTQ+ community. So it was a very conscious decision to say a happy film about the community, क्योंकि मैं देखता था बॉलीवुड में सिर्फ डार्क और इंटेंस और डिंजी फिल्में बनती थी उनके बारे में, तो बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन था वो। फिर जानवरों के लिए, अगेन समथिंग आई एम वेरी पैशनेट अबाउट, बिकॉज आई थिंक आर्ट शुड कम फ्रॉम इनसाइड यू, और कोलकाता में तो ये सबसे मतलब दिस इज द सिटी विच हैज सोल, सो इट्स द सिटी ऑफ जॉय। तो या दिस फिल्म वाज अ नो ब्रेनर फॉर मी। जो जीव बोल नहीं पाते उनके लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है, जो लोग यू नो द वीक सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, उनके लिए बोलना ज़रूरी है, और एक इक्वानिमिटी, इक्वालिटी लाना ज़रूरी है। तो ये फिल्म बनानी हमारी आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसी फिल्में बनाएं जो गुड ओल्डन डेज, राइट। तो सी, टैगोर इज़ अ हीरो फॉर मी, रविंद्रनाथ टैगोर इज़ टाइमलेस, ही हैज़ बिन देयर, ही इज़ देयर, ही विल ऑलवेज बी देयर। हमारे जैसे लोग ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन और ठाकुर, शुड आई से ठाकुर और टैगोर, ही विल लिव फॉर एवर। एंड इट्स अ वेरी कॉन्शियस। जब मैं 15-16 साल का था पृथ्वी थिएटर में 2002, तो मैं उस दिन इंटरव्यू मुझसे कोई पूछ रहा था, दे ब्रॉट दिस अप एंड आई रियलाइज कि शिट 21 साल हो गए। सो थिएटर एंड लिटरेचर एंड आर्ट इज़ अ बिग पार्ट ऑफ who I am and what makes me, and Rabindranath Tagore in that is a very big part and a big inspiration. So ये लोग जो हैं, जैसे ब्रूस ली हैं, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। मेरे घर में आप अगर आएंगे तो इनके आपको फ्रेम्स दिखेंगे, मिनिएचर्स दिखेंगे, मैसेजेस दिखेंगे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इस सब के बीच में रहना। मेरा ऐसा मानना है ज़िंदगी में एवरीथिंग यू डू इज़ योर ओन डूइंग। सो इफ़ यू थिंक राइट, इफ़ यू सी राइट, यू विल थिंक राइट, and then you will speak right and your actions will be right. अभी क्या हो रहा है, हम लोग बहुत बकवास पढ़ते हैं और देखते हैं, जिसकी वजह से हमारी सोच भी थोड़ी अटपटी होती जा रही है। अच्छा, मेरा फेवरेट सीन, एक्शन सीन्स मेरे फेवरेट है, क्योंकि मैंने न्यूयॉर्क में ट्रेनिंग की एवेंजर्स के जो ट्रेनर हैं साही सिमेश, उनके साथ, तो वो सब जो 6 महीने की मेहनत थी, वो एक्शन फिर क्या हो गया ना, आई एम एक्चुअली नाउ ट्रेन्ड इन क्राव मागा। सो अगर 4 लोग मुझसे पंगे लेने आएंगे तो मैं गिरा सकता हूँ, अब मुझे पता है। तो क्या हुआ ना, नकली नहीं है वो। एक्टिंग करते समय मुझे सोचना नहीं पड़ा कि किक परफेक्ट कैसे लगेगा, वो ऑटोमेटिकली होने लगा, क्योंकि मैंने 6 महीने ट्रेनिंग की थी। सो ऑल द एक्शन सीन्स आर माय फेवरेट। लेकिन एक सीन है मेरा, जो 2 लड़कियां इस फिल्म में डेब्यू कर रही हैं, 2 सीन एक्चुअली। एक सीन है रिद्धि डोगरा के साथ, एक्शन सीन जो उनके साथ है, जो ट्रेलर में भी जिसका एक ग्लिम्स है, और एक सीन है एकशा किरिंग के साथ, जो कि सिक्किम की पुलिस ऑफिसर है, रियल लाइफ पुलिस ऑफिसर, उनका बॉलीवुड डेब्यू है ये, और वो मार्शल आर्टिस्ट है, रियल लाइफ में किक बॉक्सर है। उनके साथ जो एक्शन सीन है वो बहुत ही ओल्ड स्कूल एंड इट्स वेरी, देयर इज अ लॉट ऑफ आर्ट इन दैट सीन। वो सीन मेरा बहुत पसंद है, कि उसमें मुझे चोट भी लगी। एकशा ने मुझे अपने बूट से मेरा सिर फाड़ दिया था रात के 3 बजे, क्योंकि एकशा ट्रेन्ड एक्टर नहीं है, तो वो जब एक्शन करती हैं तो वो फुल ऑन करती हैं, लाइक वो मारती हैं, और उनकी ये वाली हड्डी ना अजीब सी ऐसे निकली हुई है, तो जब आप उनको रोक रहे हो तो वो हड्डी बार बार आके दोनों हाथ में लगती है। मतलब शी इज़ वेरी गुड। आई थिंक शी इज़ द फाइंड ऑफ द फिल्म इन टर्म्स ऑफ एक्शन, और ऐसा किरदार जो एकशा का है वो आज तक मैं बोल सकता हूँ हिस्ट्री ऑफ इंडियन मूवीज़ में नहीं लिखा गया है। शी इज़ अ फेम पटाल, अ फीमेल असैसिन, जो हमने किल बिल वगैरह में देखा है, लेकिन इंडिया में वैसा एक, और उनकी एक भी लाइन नहीं है फिल्म में। शी इज़ द गर्ल विथ नो नेम, शी स्पीक्स नथिंग, शी ओनली किल्स। सो बहुत ही गजब उनके साथ वाला सीन, और रिद्धि डोगरा के साथ पुरानो शे दिनेर को था। नहीं यार, बस गाना नहीं गा सकता मैं। दर्शकों को क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा कि ये एक यूनिक फिल्म है, एक ओरिजिनल फिल्म है।
मैं कहूँगा रिद्धि बोलती हैं तो मैं उनसे ये बोरो करूँगा। रिद्धि हमेशा बोलती हैं आजकल ये बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है, आप लोग कहते हैं कि वी शुड नॉट सपोर्ट नेपोटिज्म, वी शुड बॉयकॉट पीपल हु आर प्रिविलेज्ड। I am not privileged. I come from a middle class family in Allahabad. I am like you. In fact, इस फिल्म का जो मूल रूप है वो ये है कि अर्जुन बख्शी एक साधारण लड़का है, ordinary है. And being ordinary is a superpower. I really believe in this. So if Anshuman can do it, if Arjun can do it, you can do it. You can call him Kalyug ka Arjun because he's fighting for the voiceless. And I really believe कि आपको इस फिल्म को इसलिए भी सपोर्ट करना चाहिए बिकॉज इट्स अ ट्रूली यूनिवर्सल फिल्म। जॉमार्क सिल्वा जो फ्रेंच डीपी है उन्होंने शूट किया है। द म्यूजिक इज बाय सिमो फ्रांस्क्वेट फ्रॉम बेल्जियम, एक्शन इज बाय केचा कमफक्ती एंड विकी अरोरा। ओंगबाक जैसी फिल्म की है उन्होंने। तो मुझे लगता है कि हमने एक दिल से फिल्म बनाने के लिए फिल्म बनाई है जो आपको एंटरटेन कर सके। फिल्म